Hello students, my today's problem is sum number 11, page number 91 of the government textbook. Following is the balance sheet on 1st April 2019 and receipt and payment account of Dayanand Library Ambajogai. You are required to prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. Now in this question the opening balance sheet is given, so we need not prepare the opening balance sheet. And receipt and payment account is given and there are some adjustments. So I will read the adjustments first. Depreciation on books, so tick mark on books. Depreciation on furniture, tick mark on furniture. Entrance fees and life membership fees is to be capitalized. So entrance fees tick mark and the whole amount of life membership fees is to be capitalized. So life membership fees tick mark. Next is library had 2000 members paying a subscription of 100 each. So member subscription. Next is value of unused postal stamps. So postal stamps, purchase of postal stamps, you have to tick mark. Okay. So I have tick mark here. Okay. I will be starting the problem. Now my first step will be preparing of the income expenditure account, preparing of the balance sheet and preparing of the schedule. Schedule number 1, that is expense schedule मैं नहीं बनाता हूँ because expense schedule की इसमें जरूरत नहीं है because I need more space to solve the other adjustments also. So I will be preparing only the income schedule because subscription पे adjustment है and I will be leaving a space here for solving the adjustments. Okay, so let's begin. Step number 1 is finding out the current year, the previous year and the next year. I will write the current year, the previous year, the next year. Current year is the year for which you prepare the accounts. In this question, it is clearly given that you have to prepare the income expenditure account for the year ended 31st of March 2020. So your year is ending in March 20. So it is starting in 19. So current year is 1920. पिछला साल 1819. Next year 2021. Hope this is clear. Hope this is clear. My second step will be posting of the opening balances because here the opening balance sheet is directly given. So directly from the opening balances or from the opening balance sheet, I will post the balances to the closing balance sheet. My liability side shows a capital fund of 7,50,000. So it is capital, so it comes in your liability capital fund, that is 7,50,000. Hope this is clear. आराम से जाएगा बॉस, हार्ड सम है, इजी नहीं है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ तो गड़बड़ है. इट इज रिलेटेड टू एन इनकम, सो उसके ऊपर हम लोग स्टार मार्क करके रखते हैं, स्टार करके रख दिया. Outstanding expenses is a liability, so outstanding expenses is a liability. It is 2000. आगे चलते हैं. Asset में furniture is an asset, so furniture is an asset. How much? It is 50,000. आगे चलते हैं. Books is an asset. It is how much? Books is an asset. It is 6,50,500. आगे चलते हैं. Stock of postage stamps. Postage is an expense, so it is related to that stock. So I am not writing in the asset. I am marking a star here because postal stamps पे adjustments है. Okay, तो बाद में देखते हैं. Investment is an asset. Investment is an asset. Investment in securities is an asset. How much? Investment is 7,000. 7,000. कुछ भी चीज पे अगर लग रहा है ना, शक आ रहा था तो उसको स्टार कर दो. इन्वेस्टमेंट में भी शक आ रहा था तो स्टार करके रख देने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन्वेस्टमेंट असेट है, इतना याद रखना. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा. चौकड़ी मार दो, चौकड़ी चौकड़ी, बिकॉज कैश एट हैंड और कैश एट बैंक जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में दिखेंगे बिकॉज हम लोग उसको करंट ईयर में यूज करेंगे. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो क्लोजिंग बैलेंस में कैश और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक आता है, लेकिन क्लोजिंग वाला आता है, ओपनिंग वाला नहीं आता है. ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, यहां पे नहीं आता है. क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस आता है. इज दिस क्लियर? My next step is reading the adjustment and tick marking, जो मैंने पहले ही कर दिया था जब मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा था. मेरा नेक्स्ट स्टेप सब 2 2 2 2 2 2 बाय 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 बाय
बाय बाय बाय बाय बाय बाय, 2 2 2 2 2 2। ओके, तो पहले 2 2 देखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस चोकड़ी, कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस चोकड़ी, सो कैश एंड बैंक चोकड़ी। टू मेंबरशिप फीस बाय मेंबरशिप फीस, टू एंट्रेंस फीस बाय, मतलब 2 2 2 बाय 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 बनने वाला है। चलते, टू मेंबरशिप फीस बाय मेंबरशिप, मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना है बस 1,80,000, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। टू एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस कितना है बस, कितना है बस 30,000, एडजस्टमेंट है। आगे टू साले ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हाउ मच, कितना है बस 2,000, एडजस्टमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल बाय हायरे ऑफ लेक्चर हॉल, हाउ मच, हायर ऑफ लेक्चर हॉल इज 10,000। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हाउ मच, हाउ मच 5,000। आगे टू लाइफ मेंबरशिप फीस, एक्चुअली स्पीकिंग when you see or when you compare this government textbook and last year's government textbook, so there is a difference. Life membership fees in this textbook they have given in the liability side, but normally what we used to do or normally what we are doing in non-profit organization, two life membership fees becomes by life membership fees, by life मेंबरशिप फीस। तो मैं ये सब में भी ऐसे ही करता हूँ, बिकॉज वैसे भी उसको कैपिटलाइज करना ही है, तो कैपिटल में ही ऐड होने वाला है। मैं उसको ऐसे करता हूँ, बाद में जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो टीचर्स बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद हम लोग उसका इफेक्ट लिख देंगे, बराबर है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से जैसे जा रहा है मैं वैसे ही जाता हूँ, बाद का बाद में देखेंगे। तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 आई हैव रिटन हियर, सब 2 2 2 2 2 2 बाय 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 बाय, टू बैलेंस चोकड़ी, टू मेंबरशिप बाय मेंबरशिप, टू एंट्रेंस बाय इंटरेस्ट, but to sale of old news by sale, to hire of lecture hall by, to interest by interest, to life membership by life membership। Is this clear? चलो आगे चलते हैं। सब बाय 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 बाय, टू 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 बाय 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 बाय, टू 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 बाय सैलरी, टू सैलरीज, हाउ मच 24,000। अरे बराबर ना। बाय परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, टू परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प मत लिखो, मैंने सिखाया था। जब एक हॉस्पिटल है तो उसमें ड्रग्स, जब कोई बिजनेस है मतलब कोई एक नॉर्मल सा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मटेरियल। अभी ये वाले ऑर्गेनाइजेशन में है ना बॉस, लाइब्रेरी है ना, तो इसमें पोस्टेज स्टैम्प है, मैंने सिखाया था, शायद तुमको याद है कि नहीं क्या पता। टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, पोस्टेज स्टैम्प, पूरा स्पेलिंग तुम लोग लिखो, मैं बड़ा हूं ना, मैं नहीं लिखूंगा। पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, याद है ना। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एड परचेज ऑफ मेडिसिन, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मैंने सिखाया है। यहां पे मेडिसिन नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये पोस्टेज स्टैम्प वाला सम है। तो इसमें टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, एड परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। इससे क्या पता चलेगा? वी विल नो दैट इन दिस ईयर हाउ मच एक्सपेंस वी हैव डन ऑन द पोस्टेज स्टैम्प। अरे समझा क्या? मैंने सिखाया था, जैसे क्लासेस का एग्जांपल दिया था मार्कर का, याद है क्या? वैसे ही पोस्टेज स्टैम्प का एग्जांपल चाहिए तो एक बार वापस से सुन लो। मेरे पास साल के स्टार्ट में 1,000 रुपए के स्टैम्प थे, मैंने और स्टैम्प खरीदे 2,000 रुपए के इस साल, बराबर ना। इसका मतलब मैंने टोटल इस साल स्टैम्प के ऊपर खर्चा कितना किया? 3,000 का खर्चा किया। पोस्टेज स्टैम्प 200 रुपए के बच गए, इसका मतलब मैंने इस साल पोस्टेज स्टैम्प पे खर्चा कितने का किया? एक्चुअल में 2,800 का किया, क्योंकि ये 200 जो बच गया ना वो नेक्स्ट ईयर खर्चा मैं बताऊंगा। इस साल
in this year my expense on postage stamp is 2800 only, and it is derived by using a formula opening stock at purchase less closing stock. ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. अरे समझ में आ रहा है? नाउ हाउ टू गेट दीज थ्री नंबर्स, हाउ टू गेट दीज थ्री नंबर्स. ये खत्म कर देते हैं एक बार, पोस्टेज स्टैम्प का कहानी खत्म कर देते हैं. नाउ हाउ टू गेट दोस थ्री नंबर्स. फर्स्ट नंबर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प. ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा. ओपनिंग बैलेंस शीट में एक स्टार करके रखा आइटम देखो वहां पे 500 का, तो उसको यहां पे लिखना पड़ेगा. इसके लिए स्टार करके रखा था बिकॉज गलती से वो असेट में लिख देते तो रॉन्ग हो जाता सम, तो इसके लिए स्टार करके रखा था बिकॉज ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प तुमको दिखेगा तो यहां पे आएगा. एट परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, परचेज विल बी इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 1500. इज दिस क्लियर? Less closing stock of postage stamp. Closing stock of postage stamp will be in the adjustment. Will be in the adjustment. ये वाला नंबर जो रहेगा ना, ये एडजस्टमेंट में रहेगा बॉस. कहाँ रहेगा? एडजस्टमेंट में रहेगा. कहाँ रहेगा? एडजस्टमेंट में रहेगा. ये रहेगा एडजस्टमेंट में. एडजस्टमेंट में रहेगा. इसके लिए इसके दो इफेक्ट आएंगे. एडजस्टमेंट में रहेगा. याद रखना, जानबूझकर ग्रीन पेन से रखा है, स्टार कर देता हूं. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 200 बराबर है ना, तो ये असेट में जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 200. होप दिस इज क्लियर. होप दिस इज क्लियर. होप दिस इज क्लियर. एक बार रिवाइंड कर लो और फिर से एक बार वीडियो देख लो. ये पोस्टेज स्टैम्प की कहानी बराबर से एक बार देख लो. समझ में आ रहा है क्या? आगे वाले प्रॉब्लम्स में भी आएगा, लेकिन एक बार फिर से देख लो. ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा, परचेज रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिलेगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प यू विल गेट इन द एडजस्टमेंट. बिकॉज इट इज इन द एडजस्टमेंट वी विल राइट टू टाइम्स. One here you will subtract and other closing stock of postage stamp is an asset. Okay? आगे चलते हैं. Buy books, two books नहीं, books asset add purchase. अच्छा, जानबूझकर डेट दिया है देखो ना परचेस पे. कभी खरीदा है? 1 अक्टूबर. जानबूझकर डेट दिया है. तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन होना चाहिए, इसके लिए. उसका वर्किंग नोट बाद में बताता हूं. आगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड. बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड मैं लिख रहा था टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, पर मैं लिखूंगा नहीं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके यहां पे दिया है 2000. पहले का एक्सपेंस बाकी था 2000. पहले की लायबिलिटी थी 2000. प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से मैंने यहां पे 2000 का लायबिलिटी लाया. I have seen that in my opening balance sheet there was a liability which was outstanding, which was not paid, which was yet to be paid, that is 2000. And when I see the receipt and payment account and when I see the payment side, I see that they have paid the outstanding expenses. Clearly लिखा है देखो ना, outstanding expenses paid 2000. So they have paid these outstanding expenses. So if they have paid these outstanding expenses, so paid 2000. So now your outstanding expenses will be nil. पहले कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? 2000 था. अभी उसको तुमने पे कर दिया. जब पे कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा और नील हो जाएगा. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करने के लिए उसको लेस करके खत्म करना पड़ेगा. अरे क्लियर है? आगे चलते हैं. आगे बाय इन्वेस्टमेंट. टू इन्वेस्टमेंट मत लिखो, लिखो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट. असेट है, ये अलग था, सिक्योरिटी में था, ये फिक्स्ड डिपॉजिट में. कितना है? 50,000. आगे चलते हैं. बाय फर्नीचर एड परचेज. जानबूझकर डेट दिया है. क्यों डेट दिया है समझ में आ गया अभी तुमको? डेट इसके लिए दिया है क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. 30,000. आगे चलते हैं. बाय बैलेंस, सॉरी बाय प्रिंटिंग टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. हाउ मच? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 6,000. Buy rent to rent, how much? 18,000. आगे buy balance. बैलेंस किसका? कैश का, बैंक का. कैश का बैलेंस कैट लो 9,500. बैंक बैलेंस कैट लो 43,000. Any props? No props. यहां तक क्लियर है पोस्टिंग्स? Now coming to the adjustments, let us talk about the basic and easy adjustments.
It is given that life membership fees is to be capitalized, less capitalize. अरे बराबर, यहां से लेस करेंगे लाइफ मेंबरशिप फी में से, तो उसकी आत्मा भटकेगी, बोलेगी सर मला इथून कशाला मायनस केलं. तो उसको बोलो ए तुला काय करायचंय, कॅपिटलाइज करायचंय ना, चल कॅपिटल मध्ये ऍड होऊन जा. ऍड लाइफ मेंबरशिप फीज. हाउ मच? 10,000. First point is clear? Okay. Second, 50% of the entrance fees is to be capitalized. So less 50% capitalized. How much? 50% कितना आएगा इसका? 15,000. यहां से लेस करेंगे, फिर से इसकी आत्मा भटकेगी. Add entrance fees. How much? 15,000. Hope this is clear. This is 7,60,000. This is 7,75,000. यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? पहला एडजस्टमेंट समझ में आ गया. हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 सॉल्व किया. 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड एंड 100% ऑफ लाइफ मेंबरशिप इज टू बी कैपिटलाइज्ड. ये एडजस्टमेंट मैंने पहले सॉल्व किया क्योंकि ये सबसे इजी एडजस्टमेंट था. My next adjustment is an adjustment which is very important. It is related to subscription. Now when we talk about subscription, you have to remember that subscription is an income. Subscription is an income, so it comes in your income schedule. हो सकता है क्लियर दिख रहा है कि नहीं? वहां पे क्लियर दिख रहा है क्या? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम शेड्यूल में आएगा and that income is 1,08,000. 1,08,000. By members subscription 1,08,000. I wrote here 1,08,000. Is it clear? यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी एडजस्टमेंट देखते हैं. एडजस्टमेंट में लिखा है लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच. लाइब्रेरी में 2,000 मेंबर है और 2,000 मेंबर 100 रुपए के हिसाब से सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. दैट मींस 2,000 into 100. That means total subscription has to be collected this year must be 2 lakhs. Hope this is clear. Once again, there are 2,000 members and they are paying 100 rupees subscription. 2,000 मेंबर है, एक मेंबर 100 रुपए सब्सक्रिप्शन भरता है. दैट मींस 2 लाख रुपीस इज द टोटल सब्सक्रिप्शन. जब मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन का सम आता है, ऐसा लिखा रहता है एडजस्टमेंट में इतने मेंबर्स और इतना सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. जब ऐसा लिखा रहता है तो हमेशा याद रखना दिस अमाउंट हैज टू बी रिटन बिलो द टेबल ईयर बिकॉज इन दिस ईयर वी नीड टू कलेक्ट 2 lakhs. अरे समझ में आ रहा है? 1,80,000 मिला है, 20,000 2 लाख का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए. मतलब अभी 1,80,000 का मेंबर्स ने पैसा भरा है. भरना कितना चाहिए? 2 लाख. भरा कितना है? 1,80,000. भरना कितना चाहिए? 2 लाख. भरा कितना है? 1,80,000. भरना कितना चाहिए? 2 लाख. भरा कितना है? 1,80,000. भरना कितना चाहिए? 2 लाख. भरा कितना है? 1,80,000. भरना कितना चाहिए? 2 लाख. मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है. अभी भी आउटस्टैंडिंग है. कितना आउटस्टैंडिंग है? 20,000 इज आउटस्टैंडिंग. अरे बराबर ना? तो इसी साल भरना चाहिए वो लोग को. तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है 20,000. लेकिन उसके पहले देयर इज अ प्रॉब्लम. तुमने एक स्टार मार्क किया ओपनिंग बैलेंस शीट में. जरा देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसमें एक सब्सक्रिप्शन तुमने स्टार मार्क किया है. वहां पे लिखा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000. वहां पे क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000. इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में तुमने लिखा हुआ है 3,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. दैट मींस प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन एडवांस. कितना? 3,000. पिछले साल एडवांस में 3,000 रुपए मिला था. अरे बराबर. तो 1,80,000 इस साल मिल गया तुमको और पिछले साल 3,000 एडवांस में मिला था. मतलब 1,83,000 हो गया इस साल. कितना चाहिए तुमको? 2 लाख चाहिए. तो 2 लाख चाहिए. तुमको कितना मिल चुका है? 1,80,000 इस साल मिला और 3,000 एडवांस मिला था. मतलब 1,83,000 मिल गया है. तो इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है? इस साल मिलना कितना बाकी है? आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है. कितना बाकी है? मिलना कितना बाकी है? 17,000 मिलना बाकी है. ये डैश कर देने का, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बताने का. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. तो 180 प्लस 17 प्लस 3 इज 2 लाख. परफेक्ट. अरे बराबर. यहां से उठाएंगे कहां पे? पचेक. ये इनकम है. इनकम कहां पचेक करेंगे? इनकम में पचेक. एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर. हाउ मच? क्षेत्र
add received in advance previous year how much 3 total is 2 lakhs. सेकंड इफेक्ट टेबल खुद बताएगा. ए टेबल्या सेकंड इफेक्ट दाखव ना. तो बोलणार 17,000 ला असेट मध्ये लिहायचं. तर लिहायचं आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन करंट ईयर 17. सेकंड 3,000 लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर. पिछले साल के लाइबिलिटी में चेक कर लो. 3,000 रुपया लाइबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस शीट में आ चुका है. दैट मीन सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट भी हो गया है. मैं सेकंड टाइम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. आराम से वीडियो को वापस से बैक कर लो और देख लो तो वो समझ में आ जाएगा. ओके. My next adjustment is related to depreciation on books and depreciation on furniture. तो जरा मैंने वीडियो को यहाँ पे ज्यादा लगेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे स्पेस करके मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ. लेट अस टॉक अबाउट द फर्नीचर फर्स्ट. बुक्स फर्स्ट. बुक्स डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम. बुक्स जरा देख लेते हैं. बुक्स यहाँ पे असेट में बुक्स लिख रहा है, देखो बराबर है. पहले कितना था बुक्स 6,50,500. बाद में कितना खरीदा 1 लाख बराबर. इसका मतलब पहले के बुक्स पे अलग डेप्रिसिएशन आएगा और ये बुक पे अलग आएगा. तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा अलग अलग क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे डेट दिया है. डेट नहीं दिया रहता ना तो टोटल मार के डेप्रिसिएशन एक साथ हो सकता है. बट व्हेन द डेट इज गिवन देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो आई विल राइट वर्किंग नोट नंबर इज दिस इज सपोज 1. सो आई राइट वर्किंग नोट नंबर इज 2. डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. आराम से ध्यान देते हैं बॉस. इजी है, बहुत इजी है. सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस बुक का कितना है 6,50,500. उस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन 10%. पूरे साल का 12 महीने का तो आएगा 65050. 0000 कैंसिल, 12 कैंसिल. 65050 इज योर डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस. जो ओपनिंग बैलेंस है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा. पूरे साल का कैसे डेप्रिसिएशन आता है बराबर से देखो. द वैल्यू ऑफ द बुक्स at the opening into the percentage into 12 months. 12 months means 12/12. अरे बराबर है. आगे चलते हैं. परचेज ऑफ बुक्स कब परचेज किया 1 अक्टूबर. कब परचेज किया 1 अक्टूबर. कब परचेज किया 1 अक्टूबर. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हाउ मेनी मंथ्स वी हैव यूज्ड द बुक्स फॉर 6 months. सो डेप्रिशिएट फॉर 6 months. परचेज ऑफ बुक्स के ऊपर 1 लाख into 10% for 6 months. You will get 0000. 6 1s are 6 2s are. You will get 2 5s are 5,000. 5,000. So your total depreciation on books will be 70,050. Total depreciation on books will be 70,050. I hope this is clear. I will write 7,50,500. Okay, less depreciation. Working note number 2 7,050 is your depreciation on books. Second effect of depreciation will be profit and loss account debit to depreciation on books. Profit and loss के डेबिट में लिखने क्या होगा तुमको याद है ना? अभी वीडियो इधर घुमाऊंगा तो इधर देख लेना. वर्किंग नोट नंबर 2 करके लिख दूंगा 7,050. अरे बराबर, मैं स्टार भी करके रखता हूं तो तुमको याद आएगा. सो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स क्लियर हो गया क्या? इजी लगा क्या? इजी लगा. डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. ओपनिंग बैलेंस है पूरे साल का. ओपनिंग बैलेंस है पूरे साल का. लेकिन परचेस कब किया? डेट दिया है ना तो काउंट करो. जुलाई में परचेस किया, सॉरी अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. तो 6 महीने हुए, 6 महीने हुए तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा. 6 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000 ऐड करेंगे. यू विल गेट 70,050 लेस फ्रॉम बुक्स. And second effect, profit and loss account debit. Similarly, same type of adjustment is of furniture also. 5th time and 3rd time. Depreciation on furniture is 8.5%. जानबूझ कर देखो ना 8.5% भी है क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे. जरा देखते हैं. चलो फर्नीचर. फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग फर्नीचर 50,000 into 10% कितने महीने के लिए?
12 महीने के लिए। अरे बराबर 10% नहीं है, सॉरी 8.5%। सो 8.5 मींस व्हाट? जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है वो देखो, पॉइंट हटा दो, एक जीरो नीचे लिखो, 3 0 3 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, मल्टीप्लाई 85 into 5, 5 5 are 25, 2 5 are 40, 42, 4250। एड परचेस पे, परचेस कितने का किया? 35,000 का किया, 35,000। कितना परसेंट? 8.5%। कितने महीने के लिए? कब खरीदा? 1 जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मरवरी, बराबर ना? 9 मंथ्स हुए। वापस एक बार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सो 9 महीने हुए ना, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 9/12। चलो पॉइंट निकालो, एक जीरो नीचे, 3 0 3 0 कैंसिल, 3 3 जा 3, 4 जा, बराबर ना? 4 1 जा 4, 7 जा 28.4, 5 जा 20। अरे बराबर पॉइंट में आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई 85 into 3 into 7.5। so 85 into 3, 3 5 are 15, 5 or 3 are 20 or 25, 255 into 75, 5 5 are 25, 5 2 5 5 are 25, 7 2 5 2 are 10, 11 12, 0 7 5 30, 5 3 7 5 35, 8 3 7 2 14, 15 16 17, 5 2 1 1 1 1912.5। तो 1912.5 बराबर ना? ऐसा आंसर आता है। तो 1913 भी कर सकता हूं, 1912 भी कर सकता हूं, बराबर है। अभी वो लोगों ने सोल्यूशन दिया हुआ है, वो लोग के सोल्यूशन में वो लोग ने 1.1912 लिया है, 1.13 लिया है। देखो नॉर्मली इट मस्ट बी 1913 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते वो लोग ने कितना लिया है। वो लोग ने लिया है 1912, तो हम लोग 1912 ही लेते हैं बिकॉज ये सॉल्व एग्जांपल है। बट इन एग्जाम यू हैव टू टेक 1913। सो आंसर विल बी 2 6 6162 is the total, 2 6 6162, 11 1 6162। depreciation on furniture less depreciation, working note number 3 6162। second effect will be profit and loss account debit to depreciation on furniture, working note number 36162 आएगा। स्टार मार्क करके रख देता हूं, मैंने इफेक्ट लिख दिया है। ओके, लेट्स कम टू द क्लोजिंग। द लायबिलिटी साइड और द क्रेडिट साइड, सॉरी द इनकम साइड इज मोर। 2 lakh plus 15 is 2,15,000, 2,17,000, 2,27,000, 2,32,000। so 2,32,000 is the total, 2,32,000 is the total। take a pencil and take total of the expenses। 0 2 0, 5 plus 6 is 11, 1 1, 1 plus 8 is 9, 9 plus 1 is 10, 0 1, 1 plus 4 is 5, 5 plus 1 is 6 plus 6 is 12, 20, 26, 6 2 carry, 2 plus 2 is 4, 5 5 plus 7 is 12, 1,26,012। you subtract, that is 2,32,000 minus 1,26,012, so you will get 1 9 9 10 8 8 9, and this will be 2 5 0 105,988, 105,988। this will be called as the surplus. Surplus will be added in your capital, add surplus 105,988, and this balance sheet will tally। now तुम लोग टैली करो, टैली हो जाएगा। कोई भी स्टार आइटम छोड़ा नहीं है ना, तो टैली आराम से होगा।